السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا ناول خاک ہوئے ہم لے کر آئی۔ یہ کہانی نفرت، محبت اور دکھوں سے بڑی ہے۔ اس کہانی میں سحر، زرش اور شارق کا ذکر ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ کیسے حسد، نفرت رشتوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو محبت جیتے گی یا نفرت؟ اور کیا انصاف مل پائے گا؟ تو چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ حویلی کی لمبی سنسان راہداریوں میں شارق کے قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی وحشت دیکھ کر سب لوگ حیران تھے۔ اس کی آنکھوں میں رت جگہ موجود تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور پورے بدن میں لرزہ طاری تھا۔ اچانک وہ ایک دروازے کے سامنے رکا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں اس نے زرش کو پچھلے 4 دنوں سے قید رکھا ہوا تھا۔ اسے دروازے کو پوری طاقت سے کھولا۔ زرش، جو اس وقت کمرے کے کونے میں بیٹھی کانپ رہی تھی، خوف سے اچھل پڑی۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے سے سوج چکی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ شارق بھیا، اسے دیکھ کر فوراً سے اس کے قریب آئی۔ اس نے شارق کا ہاتھ تھاما۔ اس کے لہجے میں موجود خوف نے شارق کے تاثرات میں کوئی اثر نہ ڈالا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ خود سے ہٹایا۔ پلیز میری بات سن لیں۔ زرش چند قدم آگے آئی۔ شارق نے اگلے ہی پل اس کا بازو پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا کہ زرش کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ اس کے سخت ہاتھوں کی گرفت سے زرش کا پورا وجود کانپنے لگا۔ آج تمہاری قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ زرش مسلسل خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دے، خدا کے لیے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر شارق جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ اسے سیڑھیوں سے نیچے ہال میں لے آیا اور پوری طاقت سے چیخا، امی، دادی، بابا، سب لوگ نیچے آئے۔ اس کی دہاڑ پوری حویلی میں گونج اٹھی۔ چند ہی لمحوں میں سب گھر والے ہال میں جمع ہو گئے۔ زرش کی چھوٹی ممانی نے اسے اس حال میں دیکھا تو بے اختیار بول اٹھی، یا اللہ، اس لڑکی نے تو نحوست پھیلا رکھی اس گھر میں نے کچھ نہیں کیا۔ زرش فوراً رو پڑی، خدا کی قسم میں بے گناہ۔ چپ۔ شارق اتنی زور سے دہاڑا کہ وہ کانپ اٹھی۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا دی۔ شارق نے زرش کو جھٹکے سے اپنے سامنے کیا۔ آج کے بعد یہ لڑکی اس حویلی سے باہر قدم نہیں رکھے گی۔ زرش کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ نہیں، یہ یہیں رہے گی، اسی گھر میں، اسی قید میں۔ وہ چلایا، شارق پلیز۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں مر جاؤں گی، مجھے مت قید کریں۔ شارق کی آنکھوں میں ایک پل کو درد ابھرا۔ تم قید نہیں رہ سکتی، لیکن تم نے مجھے جو زندہ گھاڑ دیا ہے وہ۔ زرش ساکت رہ گئی۔ تبھی شارق نے ملازم کی طرف دیکھا، مولوی صاحب کو بلاؤ ابھی، اسی وقت۔ زرش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مولوی صاحب؟ اس نے بے یقینی سے شارق کو دیکھا۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ شارق اس کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی سرد مہری تھی کہ زرش کا دل دہل گیا۔ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی قید میں لینے جا رہا ہوں۔ نہیں، خدا کے لیے، خدا کا واسطہ، پلیز ایسا نہ کرے۔ زرش چیخی، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ اس کے قدموں میں گر گئی۔ ایسی بے حیا لڑکی کو تو گھر سے نکال دینا چاہیے۔ یہ بڑی ممانی یعنی شارق کی والدہ تھی۔ اس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ قاتل ہے یہ۔ ایک ساتھ کئی آوازیں ابھری۔ ہر لفظ زرش کے سینے میں خنجر کی طرح اتر رہا تھا۔ میں قاتل نہیں ہوں، وہ روتی ہوئی چلائی۔ مجھے نہیں پتا وہ زہر تھا، میں نے کسی کو نہیں مارا۔ مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ سب کی نظروں میں صرف نفرت تھی۔ تبھی مولوی صاحب اندر داخل ہوئے۔ نکاح پڑھائیے، شارق نے حکم دیا۔ زرش کا سانس رک گیا۔ نہیں، وہ بے اختیار پیچھے ہٹی۔ میں یہ نکاح نہیں چاہتی۔ مگر شارق نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ چاہت کا وقت گزر چکا ہے زرش صاحبہ، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ اس کی ہچکیاں پورے ہال میں گونج رہی تھی، مگر شارق کا چہرہ پتھر ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے جھجکتے ہوئے شارق کی طرف دیکھا۔ بیٹا، لڑکی کی رضا؟ شارق تلخی سے ہنسا۔ جس نے دوسروں کی زندگیاں چھینی، اسے اپنی مرضی کا حق نہیں ہوتا۔ زرش کے آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ میں بے گناہ ہوں۔ شارق اس کے قریب جھکا۔ پھر ثابت کرو۔ کوئی یقین ہی نہیں کر رہا۔ وہ ٹوٹ کر بکھر گئی، کیونکہ تمہارے ہاتھوں میں ایک جنازہ اٹھا ہے۔ یہ سن کر زرش کی رہی سے ہی احتجاج کی ہمت بھی ختم ہو گئی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ نکاح کے الفاظ دہرائے۔ زرش مسلسل نفی میں سر ہلاتے رہی۔ شارق کی سخت گرفت، سب کی نفرت بری نظریں اور اس لمحے کا خوف اسے توڑ چکا تھا۔ آخرکار اس کے کانپتے ہونٹ ہلے۔ قبول ہے، یہ 2 لفظ کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ نکلا۔ شارق نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل کیا۔ مبارک ہو۔ مگر اس ہال میں موجود کسی چہرے پر خوشی نہیں تھی، صرف خاموشی تھی، اذیت ناک خاموشی۔
زرش نے لرزتے وجود کے ساتھ شارق کو دیکھا. وہ اب اس کا شوہر تھا مگر اس کی آنکھوں میں محبت نہیں صرف سزا تھی. شارق آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اتنی دھیمی آواز میں بولا کہ صرف وہی سن سکی. اب تم ہمیشہ میری قید میں رہو گی زرش. میں تمہیں اتنی اذیت دوں گا کہ تم موت مانگو گی پر موت بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. اور زرش کو پہلی بار محسوس ہوا کہ بعض نکاح محبت نہیں عمر بھر کی سزا بن جاتے ہیں. زرش کو وہ رات یاد آئی جب سب بدل چکا تھا یہاں تک کہ اس کی زندگی بھی. چند مہینے پہلے دوپہر کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا. سحر اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب کھولے لفظوں کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہی تھی. سحر سحر. اسے آنیا کی آواز کمرے کے قریب سے سنائی دی. اسے گہرا سانس پڑا. تبھی دروازے پر دستک ہوئی. کیا بات ہے؟ سحر نے دروازہ کھول کر آنیا کو دیکھا. وہ اس کی چھوٹی ممانی کی بیٹی تھی. میں نے تمہیں کل کہا تھا نا کہ میری یہ شرٹ دھلی ہوئی ہونی چاہیے. وہ دبے دبے غصے سے چلائی. سحر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا. مجھے یاد تھا لیکن میں مصروف تھی. آنی کو اس جواب کی ہرگز بھی توقع نہیں تھی. اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا. مصروف؟ اب تم بھی مصروف لگنے لگی. اس کا انداز مذاق اڑاتا ہوا تھا. ایسی کیا مصروفیت ہے؟ وہ ہاتھ باندھے زہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. پیپر ہے کل میرا، پڑھ رہی تھی میں. سحر نے اپنی پوری ہمت جمع کرتے ہوئے اسے جواب دیا. یہ ہمت اسے شارق نہیں دلائی تھی. وہ اس کے بڑے ماموں کا بیٹا تھا. اب تمہیں کسی سے دب کر نہیں رہنا. سب کو جواب دینا سیکھو. نہ کہنا نہیں سیکھو گی تو ہر کوئی تمہیں بیچ کھائے گا. یہ یاد آتے اس نے ڈرتے ڈرتے آنیا کو کہہ دیا. ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں تمہاری یہ مصروفت کب تک قائم رہتی ہے. وہ دھیمی آواز میں کہہ کر مسکراتی باہر نکل گئی. سحر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا. وہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھی اور ایک بار پھر سے اپنے نوٹس کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کرنے لگی. تھوڑی دیر بعد اس کا کمرہ ممانی جان کی چیخوں سے گونج رہا تھا. سمجھتی کیا خود کو؟ ملازمہ نے صرف 2 دن چھٹی کی اور میں نے تمہیں کپڑے دھونے کی ذمہ داری دی تھی. وہ بھی تم سے نہ ہوا؟ انہوں نے اس کے ہاتھ سے نوٹس لے کر دیوار پر دے مارے اور سحر کی آنکھیں پھیل گئی اور آنسو بہنے لگے. سچ میں میرا پیپر ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی. وہ تڑپ اٹھی. ممانی جان نے آگے بڑھ کر اس کے بال مٹھی میں جگڑے اور زور سے جھٹکا دیا کہ سحر کو لگا جیسے اب وہ اگلا سانس درد کی بھرپور لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی. یاد رکھو کہ میرے شوہر کے پیسوں سے یہ عیاشی ہوتی ہے. چاہو تو تمہاری پڑھائی چھڑا کر اپنے پیسے بچاؤ لیکن یہ احسان ہے میرا تم پر. اب جاؤ جا کر کپڑے دو ابھی اسی وقت. ان کی آواز میں اس قدر گرج تھی کہ وہ انکار ہی نہ کر سکی. اس کی زبان تالو سے جیسے چپک کے مرے قدموں سے اس صحن میں آئی جہاں کپڑوں کا ایک ڈھیر موجود تھا. ملازمہ تو آج بھی آئی تھی لیکن اسے جلدی بھگا دیا گیا. اس گھر میں اس کے ساتھ یہی تو ہوتا چلا آیا تھا. وہ اس گھر کی نوکرانی بن چکی تھی. وہ اس وقت صرف 22 برس کی تھی لیکن اس کا ذہن کسی 60 سال کے بوڑھے کی طرح عمر رسیدہ ہو چکا تھا. اسے سرف سے الرجی تھی. یہ بات سب جانتے تھے مگر کپڑے دھونے کے بعد اس کے ہاتھ میں چھالے پڑ جائیں گے. مگر کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی. اپنے پرائے سب ایک ہوئے. اسے آنکھوں سے آنسو سمیٹے اور کپڑے دھونے لگے. دوپہر کے 1 بجے سے اب شام کے 7 بج رہے تھے. کپڑے تار پر پھیلانے کے بعد وہ وہیں بینچ پہ بیٹھی آسمان پر نظریں جمائی. آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی. کیا کبھی میری زندگی بدلے گی؟ اسے خود سے سوال کیا. اسے اسی وقت اپنے پیچھے بھاری قدموں کی گونج سنائی دی. اسے فوراً سے اپنے آنسو صاف کی. پیچھے مڑ کر دیکھا تو شارق سینے پر بازو لپیٹے گہری نظروں سے گھور رہا تھا. تم رو رہی ہو؟ وہ وہیں اس کے برابر میں تھوڑا فاصلے پر بیٹھا. نہیں تو مجھے پڑھنے جانا ہے. میں پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں. بہانہ بنا کر اٹھنے ہی لگی تھی کہ شارق نے اس کی کلائی اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں لی. کب تک آنسو کو مجھ سے چھپاتی رہو گی؟ سب کے معلوم بھی ہے کہ میں سب جانتا ہوں. شارق کا لہجہ نرم اس کے دل کو چھو گیا. اس نے اسے دوبارہ سے اپنے برابر میں بٹھایا تو اسے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ بری طرح سے رونے لگی. ریلیکس، تمہارے آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں. اس نے نگاہیں اٹھا کر شارق کو دیکھا. یہ آپ کی ہمت کا نتیجہ تھا، وہی ہمت جو آپ نے مجھے دلائی تھی. تبھی شارق کی نظر اس کے چہرے سے ہوتی اس کے ہاتھوں پر پڑی جہاں چھالے نمایاں تھے. یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے بے ساختہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر پوچھا. عادت ہو گئی ہے. دل پر زخم لگتے ہیں اور جسم پر بھی. کس کی پرواہ کرو؟ اپنی بات مکمل کرتے وہ تیزی سے دوڑ کر دروازے کی سیڑھیوں سے نیچے گھر میں گم ہو گئے اور شارق کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا. کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا. میں خود کو بے بس پاتا ہوں. وہ بے ساختہ اداس ہو گیا تھا. لندن کے اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں فریدہ بیگم ہاتھوں میں تصویر اٹھائے اپنے دل کو تھامے.
अपने आंसू का गला घोंट रही थी। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जरीश उनके बराबर में आकर बैठी और एक लम्हे के लिए थम सी गई। उसने उनके हाथ से तस्वीर ली। ये आप ही है ना? उसे देखकर मुस्कुराई। हाँ, ये तुम्हारी सहर आप ही है। वो तस्वीर देखकर अपने सीने से लगा चुकी थी। तुमने अभी तक इस मनहूस की तस्वीर इस घर से मिटाई नहीं? जरीश से अकब से आती आवाज ने फरीदा बेगम को जहां साकित किया, वहीं जरीश की आंखें भी हैरत से फैल गई। बस एक तस्वीर ही तो है, उन्होंने धीमी आवाज में शिकवा किया। इसकी तस्वीर भी इस घर में नहीं होनी चाहिए थी। वो मनहूस है, थी और रहेगी। क्या तुम्हें मालूम नहीं है? वो दहाड़े तो जरीश के हाथ से तस्वीर छूट कर गिरी। फिरोज साहब ने तस्वीर उठाकर आतिश शान में डाल दी, जो अब जल कर राख हो रही थी। बाबा, ये क्या किया आपने? जरीश फौरन से आगे बढ़ी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। तुम चुप रहो, तुम बच्ची हो, नहीं समझी, कम अक्ल हो तुम, नादान हो। आज के बाद इस लड़की का जिक्र इस घर में हरगिज नहीं होगा, समझी तुम? उन्होंने गुस्से में कहकर बात ही खत्म कर दी। लेकिन फरीदा बेगम का दिल जैसे आग के शोलों से पिघल कर उनके कदमों में गिर चुका था। उन्हें वो दिन याद आया जब उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। उनकी फिरोज साहब से दूसरी शादी थी। पहली शादी बुरी तरह नाकाम हुई थी और वो अपने वालिदैन के घर वापस आ गई थी। उनके साथ उनकी बेटी सहर भी थी, जो उस वक्त सिर्फ 4 वर्ष की थी। तलाक की खबर सुनकर फिरोज साहब ने अपना रिश्ता भेजा था। वो शुरू से उन्हें पसंद करते थे, मगर फरीदा बेगम ने उन्हें ठुकरा कर किसी और को चुन लिया। आखिर फिरोज साहब की मोहब्बत जीत गई, मगर उनकी शख्सियत में वहम कूट कूट कर भरा था। फरीदा बेगम को लगा कि उनकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। 4 बरस की सहर और 1.5 बरस की जरीश फिरोज साहब ने सहर को कबूल कर लिया, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान आने के बाद उनका एक फैसला सहर की ज़िंदगी को तबाह कर गया। वो बच्चों को लेकर पार्क गए, जहाँ बैठी एक बूढ़ी औरत ने इशारे से फिरोज साहब को अपने पास बुलाया। वो इंतहाई अजीब सी औरत थी, चारों उंगलियों में मुख्तलिफ किस्म के पत्थर पहने। उनकी दोनों बेटियों को मुसलसल निगाहों में लिए हुए थी। अलग करते दोनों को, वरना बर्बाद हो जाएंगी, एक दूसरे को खा जाएंगी। उस बूढ़ी औरत ने सहर की तरफ इशारा किया। फिरोज साहब के माथे पर बल पड़े। क्या मतलब? घर बर्बाद होंगी, एक दूसरे को खा जाएंगे? वो लाठी टेकती उठी। मैं नजूमी और मेरा कहा गलत नहीं होता। एक दूसरे को खा जाएगी, घर बर्बाद कर देगी, वो मुसलसल कहती वापस पलट गई। और फिरोज साहब ने गुस्से से सहर को देखा, जो अपनी दुनिया में मगन फूल तोड़ने में मसरूफ थी। वापस छोड़ा उसे अपनी माँ के पास। उन्होंने वही फैसला सुनाया तो फरीदा बेगम तड़प उठी। वो नजूमी है, आपको अल्लाह पर यकीन नहीं है क्या? उन्होंने इशारे से उन्हें चुप करवा दिया। मेरी बेटी पर आँच आए कि मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब फैसला तुम्हारा है, या तो तू मुझे और जरीश को चुनो या फिर सहर को। फरीदा बेगम का दिल फटने के करीब हुआ। उन्होंने दिल पर पत्थर रखा, अपनी सिसकियाँ रोकी और सहर को हमेशा के लिए अपनी माँ के पास छोड़ा। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मैं मजबूर, मेरी दोनों बेटियां मुझसे जुदा हो जाएंगी, इसलिए सिर्फ एक को जुदा कर रही हूँ। उन्होंने सहर का माथा चूमा। वो जाने के लिए आगे बढ़ी तो दौड़ कर उनके सीने से जा लगी। मामा, मुझे आपके साथ जाना है, मुझे यहाँ डर लगेगा। उन्हें लगा कि वो दुनिया की सबसे जालिम माँ है। उनका कलेजा फटने लगा। रोते नहीं बेटा, मैं आऊँगी, तुम्हें ले जाऊँगी बहुत जल्द। और ये वो वादा शायद हमेशा के लिए अधूरा रह जाने वाला था। सहर, सहर। वो माजी में खोई थी जब उसे अपनी माँ का हल्का सा लम्स याद आया। शारे की आवाज़ पर वो गहरी सोच से जागी। रात के 12 बज रहे थे और उस वक्त किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी। साबुन की झाग उसके चेहरे पर लग रही थी। कब से तुम्हें आवाज़ें दे रहा हूँ, कौन सी दुनिया में गुम हो? वो धीमे लहजे में कहता करीब आया और उसके मुंह पर लगी झाग को हाथ बढ़ाकर हटाना चाहा। वो एकदम से पीछे हटी। क्या काम है आपको? वो नजरें चुराकर बोली तो शारिक की नजरें उसके हाथ की पुष्ट पर पड़ी और वो साकित हो। ये सब क्या है? उसके हाथ की पुष्ट जली हुई थी और जल्द की एक तह जैसे गायब हो गई थी। तुम्हारा हाथ जल गया है और फिर भी तुम इन्हीं हाथों से बर्तन धो रही हो? उसे सहर के हाथों को अपने हाथों में था। होता रहता है। मैं मुस्कुराई। आपको क्या काम है? खाना लगाना है क्या? उसके हाथ फिर से काम कर रहे थे। छोड़ दो ये नाटक, जानता हूँ मैं बहुत दुखी हूँ। तो वो झिंझलाया। आपके कहने से मेरे दुख कम नहीं हो जाएंगे, जिंदगी तो इसी तरह चलती रहेगी ना। शारिक साहब। उसे खाना गर्म किया और शारिक को मेज पर सर्व किया। वो प्लेट लेने के लिए मुड़ी ही थी कि उसे चक्कर सा महसूस हुआ। शारिक फौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसे थामा। क्या हुआ, तुमने खाना नहीं खाया? उसने अंदाजा लगाया। पता नहीं, याद नहीं है। सहर गायब दिमागी की कैफियत से बोली तो शारिक का दिल जैसे दुख से भर गया। इधर आओ। उसने हाथ उसके धुलवाए और फिर से मेज पर बैठाया। रोटी का नवाला तोड़ा और सहर के मुंह में डाला, लेकिन नवाला उसकी हलक में ही कहीं अटक गया। आंखों से आंसू की बरसात फिर से होने लगी।
रिलैक्स यार, खाना तो रिलैक्स होकर खा लो। वो बेबसी की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा था। आप भी खाए ना। वो धीमा सा मुस्कुराई। एक बात पूछूं तुमसे? शारिक गौर से उसे देखने लगा। जी। वो हाथ रोके उसे देखने लगी। शादी करोगे मुझसे? सैर की आंखें हैरत से फैली, फिर वो हंसी और हंसती ही चली गई। ऐसी नामुमकिन बातें क्यों कहते हैं आप? उसे फौरन से बर्तन उठाया और अपने दुख को छुपाने की कोशिश की। तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ यार, मुझे जवाब चाहिए, हाँ या ना। सहर ने पीछे पलट कर देखा। इस बात का क्या ही जवाब हो सकता है जिसका सवाल ही बेकार हो। वो कंधे उचकाकर आगे बढ़ने लगी जब शारिक उसके रास्ते में आया। हाँ या ना। सहर उसकी आंखों में झांकने लगी। आपसे नहीं हो पाएगा, मैं लिख के देती हूँ। वो गमगीन सी होती बाहर निकल गई और शारिक मुस्कुराया था। कोशिश करके देखूंगा, तुम्हारे लिए दुनिया हार सकता हूँ। उसे पहली बार अपने दिल में एक सुकून सा उतरता महसूस किया। क्या आप बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारा रिश्ता मैंने आनिया के साथ सोचा है, ऐसा तुम ना क़यामत तक नहीं हो सकता। नायला बेगम, जो कि शारिक की वालदा थी, उसकी बात सुनते ही भड़क उठी। अम्मी, शहर में क्या खराबी है? वो गुस्से से चिल्लाया। अपनी आवाज नीची रखो। अपनी माँ को ना सिखाओ तुम्हारे लिए कौन बेहतर है और कौन नहीं। पिछले 22 वर्षों से वो यहाँ नौकरानी बनकर रह रही है और अब अचानक से मलका बना दूं? ये मुझसे नहीं होगा, बल्कि क़यामत तक नहीं होगा। आपके दिल में उसके लिए इतना जहर क्यों है आखिर? इतनी मासूम है वो, कितने दुख सहे हैं उसने, और आप? वो गहरे दुख से उन्हें देखे गया। बस खामोश, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो अब तुम्हें ये सब पट्टियां पढ़ाती है। इसे तो मैं। शारिक ने बेख्तियार उनका हाथ थामा। उसने मुझे कोई पट्टी नहीं पढ़ाई। मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। सब समझ आता है मुझे, सब नजर आता। कैसी जिंदगी जी रही है वो यहाँ पर। नायला बेगम ने बेख्तियार गहरी सांस भरी, गोया अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश की। अब अगर तुमने दोबारा उसका नाम लिया तो मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी, बल्कि तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। शारिक हक्का बक्का रह गया था। उसे इस कदर मुखालफत की उम्मीद नहीं थी। दरवाजे के पार खड़ी आनिया बेख्तियार मुस्कुराई। तुम मेरी जगह लोगी सर? ऐसा कभी ख्वाबों में भी मत सोचा। अपने बालों की लट को उंगलियों में घुमाते वो अपने कमरे की जाने पड़ गई और शारिक बेजान सा वही साकित खड़ा रह गया। शारिक ने मुसलसल 3 दिन अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन नायला बेगम हामी ही नहीं भर रही थी, बल्कि वो मजीद आग का शोला बनी सैर की जिंदगी अजीरन कर रही थी। इसी दौरान शारिक को उसके वालिद साहब दाऊद अहमद ने ऑफिस के काम के सिलसिले में दोपहर दूसरे शहर भेजा। जाने से पहले वो शहर के पास आया। क्या हुआ है? आपका मुंह क्यों लटका है? वो हस्बे मामूल कोई ना कोई काम कर रही थी। इस वक्त किचन में खड़ी वो रोटियां बनाती उसे देखकर मुस्कुराई। मैंने अम्मी से बात की थी, वो नहीं मानी। शारिक ने दिल पर पत्थर रखकर उसे हकीकत बताई। उसका सर झुक गया। शहर का चेहरा बुझ गया। ये कोई नई बात नहीं है, मुझे पहले मालूम था। उसकी सारी तवज्जो अब रोटी के फूलने पर थी। मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, ओके? शारिक पलट गया और शहर उसे खुद से दूर जाते हुए देखती रही। जब किस्मत ना मिलनी हो तो दिल क्यों मिल जाते हैं, उसे बेख्तियार सोचा था। आंख से आंसू टपक कर आटे में मिल गया था। वो सर झटक कर अपने काम में मसरूफ हो गई। शहर, तेरी किस्मत नहीं बदलनी तो खाक हो जाएगी, तब भी नहीं। वो उदासी से मुस्कुराई और अपने काम में दोबारा से झट गई। 2 दिन बाद शारिक की वापसी हुई। घर पर पूर सुनाटे का मंजर पेश कर रहा था। वो बेहद थका हुआ था। सफर ने उसे अधमुआ कर दिया था। वो धीरे धीरे चलता हुआ अपने कमरे में आया। उसकी वालदा ने उसे पहले ही बता दिया था कि वो सब एक शादी की तकरीब में जाएंगे, इसलिए खाना वो खुद गर्म करके खा ले। लेकिन वो खाना खाकर आया था, अब बस उसे आराम की जरूरत थी। अपने कमरे में जाने से पहले उसकी नज़र छत के खुले दरवाजे पर पड़ी। वो एकदम से हैरान हुआ। धीरे धीरे चलता वो छत पर आया और अगले मंजर ने उसके कदम जकड़ लिए। सैर छत की रेलिंग के आखिरी किनारे पर खड़ी कूदने की कोशिश में थी। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वो 1 सेकंड के हजारों हिस्से में दौड़ा और उसे कमर से खींच कर पीछे किया। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? वो जोर से चिल्लाया कि पूरे सन्नाटे में सिर्फ उसी की आवाज सुनाई दे रही थी। हाँ, मैं हो गई हूँ पागल। क्या फायदा इसी जिंदगी का? मैं मर जाना चाहती हूँ। क्या बचाया मुझे? क्यों? उसे एक झटके से शारिक को धक्का दिया और दोबारा से रेलिंग की तरफ दौड़ी। वो खुदकुशी की कोशिश कर रही थी। होश में आओ। वो एक बार फिर से उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था और वो मचल रही थी। मुझे नहीं जीना। उसकी आंखों में झांकते उसने चिल्लाते हुए अपनी बात दोहराई।
शारिक की नज़र उसके चेहरे पर लगे जख्मों पर गई। फिर धीरे धीरे उसे अंदाज़ा हुआ कि इस बार ज़रूर कुछ गैर मामूली हुआ है। उसका पूरा वजूद जख्मों से चूर था, तशद्दुद के निशान जा बजा मौजूद थे। ये सब किसने किया? वो बेख्तियार उसके जख्मों को छूते हुए बोला। खामोशी से उसकी आंखों में आंसू देख रही थी। आंसू टूट टूट कर बिखर रहे थे। अगली पल वो उठा और उसने सहर की कलाई थामी। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? वो अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाने लगी, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। उसने उसे गाड़ी में बिठा तेज रफ्तारी से ड्राइव करते अपने दोस्त के घर ले आया। मौलवी साहब का इंतजाम करो। सहर शिशर है कि ये क्या कर रहे हैं आप? एक बोंझाल आ जाएगा, तूफान मच जाएगा। शारिक ने बेख्तियार उसके होंठों पर हाथ रख दी। जिंदगी बदलना चाहती हो या नहीं? वो नम आंखों से उसकी तरफ देखता पूछ बैठा। सहर ने नजरें झुका ली और उस रात वो दोनों शादी के बंधन में बंध गए। उसे पूरे इस्तेहकाक के साथ गवाहों की मौजूदगी में अपने नाम कर चुका था। बात की बात में देखी जाएगी, लेकिन अब तुम्हारे आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस रात सहर को लगा कि उसे नई जिंदगी मिल गई है। शारिक की मोहब्बत भरी आगोश ने उसकी जिंदगी का एक अलग ही रूप उसे दिख दिया था। उनके निकाह को 1 महीने से जायद गुजर चुका था। सहर ने अब अपने लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी, मगर अब भी उसकी हैसियत किसी नौकरानी से कम नहीं थी। उस वक्त वो दोपहर के खाने के लिए मेज़ के गिर्द मौजूद थे। मैं आप सबको खुशखबरी देना चाहती हूँ। शारिक की वालिदा ने आनिया की तरफ मोहब्बत पाश निगाहों से देखते हुए बोला। अब वक्त आ गया है कि हम रिश्तों को मज़ीद गहरा करें। शारिक ने चौंक कर अपनी वालिदा की तरफ देखा। मैं आनिया और शारिक का रिश्ता पक्का करती हूँ। किचन के दरवाजे में खड़ी सहर ये सुनकर शशर रह गई। अम्मी प्लीज़, मैं शादी नहीं करना चाहता फिलहाल। उसे नागवारी से कहकर सहर की तरफ देखा तो अपने आंसू छुपाती फौरन से कमरे की तरफ बढ़ी। शारिक सबकी नजरें बचाकर उसके पीछे आया। वो बेड के किनारे पर टिकी बुरी तरह से रो रही थी। हाथ मत लगाए मुझे। पहले ये मुझे बताएं कि आपकी ज़िंदगी में मेरी हैसियत क्या है। अगर आपको इसी तरह हमारा रिश्ता मुखफ़ी रखना था तो मुझे ख्वाब क्यों दिखाए? उसका गिरेबान पकड़कर चिल्लाई। सहर, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें। उसकी बात मुकम्मल भी ना हो पाई थी कि सहर लड़खड़ा कर उसकी बाहों में झूल गई। सहर, सहर आंखें खोल। शारिक ने उसका चेहरा थपथपाया और उसे बेड पर लिटाया। उसे फौरन से डॉक्टर को फ़ोन किया और पिछले दरवाजे से उसे अंदर ले आया। डॉक्टर ने तसल्ली से सहर को चेक किया। डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। नहीं, बल्कि ये खुशखबरी है, अब आप करने वाले हैं। ये सुनकर शारिक जहाँ था वही थम गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। वो फौरन से सहर के करीब आया जो अब होश में आ रही थी। क्या हुआ है मुझे? वो डॉक्टर ने क्या कहा? वो डॉक्टर को देख चुकी थी। तुम माँ बनने वाली हो। ये सुनकर वो मुस्कुरा भी न सकी, बस रुख फेर लिया। तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, ये वादा है तुमसे, क्योंकि अब तुम सिर्फ अकेली नहीं बल्कि मेरा बच्चा भी तुम्हारे पेट में पल रहा है। शारिक ने बेख्तियार उसके पेट पर हाथ रखा तो सहर उसके लहजे की सच्चाई पर ईमान ले आई। उससे अगले 3 दिन उसने भूख हड़ताल की। आनिया के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई, लेकिन वो खामोशी से तमाशा देखते रहे। उसे लगा था वो मानी जान कभी नहीं मानेगी, पर उनका एक इकलौता बेटा जब घर छोड़कर जाने लगा तो उनका दिल नरम पड़ गया। माँ को जीते जी मारोगे क्या? उन्होंने इसे रोका था। माँ को मेरा दिल मारकर शायद सुकून नहीं मिल रहा, इसलिए उनसे दूर जाना ही बेहतर है। वो मुस्कुराया, आंखों में उदासी ठहर गई थी। ठीक है, तुम्हारी जिद के आगे हथियार डालती। सहर को बहू बनाने के लिए मुझे कोई एतराज नहीं है। आनिया वहीं थम गई। तमाम घर वाले हैरान हो गए और सीढ़ियों के आखिरी कोने में खड़ी सहर ने भरपूर मुस्कुराहट से उसे देखा। शारिक ने सर को खम देकर उसकी मुस्कुराहट वसूल की। शादी के हंगामों का शोर मच उठा और उन दोनों ने इस रात को खुफिया रखा कि वो दोनों पहले से ही शादीशुदा और एक बच्चे के माँ बाप भी बनने वाले हैं। शारिक खुश था, बहुत खुश था, लेकिन नहीं जानता था कि आजमाइश तो अब शुरू हुई है। लंदन की सर्द शाम थी। बारिश की हल्की बूंदें शीशों से टकरा रही थी, जबकि फरीदा बेगम खामोशी से किचन में खड़ी चाय बना रही थी। चेहरे पर बरसों की थकन वाजिया थी। तभी फोन की घंटी बजी। उन्होंने चौंक कर फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई। मुबारक हो फरीदा, शहर का निकाह तय हो गया। उनके हाथ से कप तकरीबन छूट गया। क्या? हाँ, अगले हफ्ते निकाह है, तुम लोग फौरन पाकिस्तान पहुंचो। फरीदा बेगम की आंखें भर आई। बरसों बाद किसी ने उन्हें शहर के हवाले से खुशखबरी दी थी। कॉल खत्म हुई तो वो वही कुर्सी पर बैठ गई। अम्मी। सीढ़ियों से उतरती जरिश ने हैरत से उन्हें देखा। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? फरीदा बेगम के लब कांपे। शहर का निकाह तय हो गया। जरिश की आंखें खुशी से चमक उठी।
सच? मगर अगले लम्हे उसकी मुस्कुराहट मदम पड़ गई। उन्हें बारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिरोज साहब अंदर हॉल में दाखिल हुए। कौन था फ़ोन पर? उन्होंने संजीदगी से पूछा। फरीदा बेगम ने पहली बार नजरें झुकाने की बजाय सीधा उन्हें देखा। पाकिस्तान से कॉल थी। सहर का निकाह तय हो गया है। फिरोज साहब का चेहरा फौरन सख्त हो गया। तो? फरीदा बेगम खड़ी हो गई। मैं अपनी बेटी के निकाह पर जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने कहा ना, उस लड़की से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। फरीदा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। वो मेरी बेटी है। जरीश हैरत से अपनी माँ को देख रही थी। वो फौरन से अपनी माँ के सामने आकर खड़ी हो गई। तो फिर हम दोनों चले जाएंगे? फिरोज साहब चौंके। जरीश? जी डैड। उसकी आवाज मजबूत थी। आप हमेशा आप ही के साथ नाइंसाफी करता है। कभी सोचा है उन पर क्या गुजर रही होगी? तुम अपनी हद में रहो। जरीश की आंखें नम हो गई। एक बहन अपनी बहन के लिए नहीं बोल सकती क्या? जरीश ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा। अम्मी, हम पाकिस्तान जाएंगे। फिरोज साहब गुस्से से वहां से चले गए। उस रात बरसों बाद फरीदा बेगम ने सुकून से फैसला किया। वो अपनी बेटी के साथ एयरपोर्ट पर खड़ी थी। फरीदा बेगम ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और फिर अगले ही लम्हे उन्होंने जरीश का हाथ मजबूती से थाम लिया। चले अम्मी। फरीदा बेगम ने गहरा सांस लिया। चलो। और यूं बरसों बाद एक माँ अपनी बेटी के हक में खड़ी हो गई, जबकि एक बहन अपनी बहन के लिए अपने बाप के सामने डट गई। हवेली आज दुल्हन बनी हुई थी। हर तरफ रोशनियों की जगमगाहट, फूलों की खुशबू और मेहमानों की आमद की आवाज़ें गूंज रही थी। लेकिन इस शोर में भी सहर का दिल अजीब बेचैनी में मुब्तला था। वो आईने के सामने बैठी तैयार हो रही थी जब दरवाज़ा खुला। आपी? ये आवाज़ सुनते ही सहर चौंकी और अगले लम्हे जरीश भागकर से लिपट गई। सरिश? सहर की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। तुम आ गई? दोनों बहनें बरसों बाद मिली थी। फोन पर वो कभी कभी छुप छुप कर बात कर लेती थी। सहर बार बार उसका चेहरा छू रही थी। तुम कितनी बड़ी हो गई। जरीश हंसती। अगले लम्हे सहर की आंखें नम हो गई। मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। उसे खुद से लगाते हुए बोली, आपके निकाह पर ना आती, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटी रो पड़ी थी। दरवाजे पर खड़ी फरीदा बेगम अपनी बेटियों को देखकर खामोशी से आंसू पोंछ रही थी। तभी आनिया वहां आई। उसके चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट थी। जरीश, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आनिया ने उसके कान में सरगोशी की। जरीश चौंक कर उसके साथ बाहर आ गई। आनिया उसे अपने कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर दिया। तुम सहर से बहुत मोहब्बत करती हो ना? जरीश ने इस बात में सर हिलाया। जाहिर है, वो मेरी बहन है। आनिया ने गहरा सांस लिया और मसनूई अफसरगी से देखा। काश वो भी खुश होती। क्या मतलब? जरीश फौरन परेशान हो गई। आनिया आहिस्ता से उसके करीब आई। तुम्हें शायद नहीं पता, ये निकाह सहर की मर्जी से नहीं हो रहा। जरीश के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? शारिक किसी और से मोहब्बत करता है ताइमी, जबरदस्ती शादी करवा रही है ताकि उन्हें मुफ्त की मुलाजमा हाथ लग जाए। वो यहाँ वैसे भी इंतहाई बुरी जिंदगी गुजार रही थी। जरीश शशर रह गई थी। सहर सिर्फ खानदान की इज्जत के लिए खामोश है। जरीश बेयकीनी से उसे देखती रही। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। आनिया ने फौरन मोबाइल निकाला और शारिक के साथ एक लड़की की चंद तस्वीरें दिखाई। जरीश के दिल में बेचैनी उतरने लगी। फिर आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? आनिया की आंखों में चालाकी उभरी। क्योंकि अगर तुम वाकई अपनी बहन से मोहब्बत करती हो तो उसे इस अजियत से बचा लो। मैं क्या करूं? वो रो पड़ी। आनिया ने आहिस्ता से एक शीशी निकाली। ये सिर्फ हल्की नींद की दवा है, सैर की जूस में पिला दो। निकाह कुछ देर के लिए रुक जाएगा, तब तक मैं सब संभाल लूंगी। नहीं, ये गलत है। जरीश घबरा गई। गलत? आनिया ने फौरन जज्बाती वार किया। गलत यह है कि तुम अपनी बहन को ऐसी शादी में धकेल दो जहां मोहब्बत और इज्जत दोनों ही नहीं है। जरीश खामोश हो गई। उसके जहन में सहर का उदास चेहरा घूमने लगा। आनिया ने फौरन उसका हाथ थामा। बस आज अपनी बहन के लिए कर दो। कई लम्हों बाद जरीश ने लड़ते हाथों से वो शीशी पकड़ ली और कमरे में सहर तैयार बैठी थी। जरीश ने मुश्किल मुस्कुराहट सजाई और जूस उसकी तरफ बढ़ाया। आपी, आपने कुछ खाया पिया नहीं है ना? मुझे मुलाजमा ने बताया। सहर मोहब्बत से उसे देखकर मुस्कुराई। तुम आ गई हो ना, अब मुझे फिक्र की क्या ही जरूरत है। जरीश की आंखें नम हो गई। हमेशा ख्याल रखूंगी आपका। सहर ने जूस पी लिया और चंद ही लम्हों बाद उसके सर पर शदीद दर्द उठा। जरीश, मुझे अजीब सा लग रहा है। जरीश घबरा गई। शायद थकन होगी आपी, अब थोड़ा आराम कर लें। मगर अगले ही लम्हे सहर बेहोश होकर बेड पर गिर गई। आपी? जरीश बुरी तरह से कांप गई। उसी वक्त आनिया अंदर आई। जल्दी करो। उसे सहर का दुपट्टा उठाया। उसे अंदर वाले कमरे में ले जाओ। लेकिन वो घबरा कर पीछे हटी। वक्त नहीं है, जल्दी करो।
زرش خوفزدہ دل کے ساتھ سحر کو اٹھائے اندر لے گئی. پھر آنیا نے سحر کو دلہن بنا کر شارق کے برابر میں بٹھا دیا. نکاح کی تیاریاں مکمل تھی. مولوی صاحب آ چکے تھے. شارق بہت خوش نظر آ رہا تھا. تبھی اچانک ایک ملازمہ چیختی ہوئی ہال میں داخل ہوئی. شارق صاحب سب چونک گئے. وہ سحر باجی وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی. اوپر اسٹور روم میں گری ہوئی ہیں، ان کے منہ سے جھاگ بھی نکل رہی ہے. شارق کے وجود میں جیسے سناٹا چھا گیا. کیا؟ اسے ششک نگاہوں سے اپنے برابر میں بیٹھی دلہن کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے گونگٹ اٹھایا. وہ زرش تھی. یہ سب کیا ہے؟ وہ حیران رہ گیا. جلدی صاحب وہ مر رہی ہے. ملازمہ چلائے تو شارق زرش کو اپنی جگہ چھوڑ کر بجلی کی رفتار سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر بھاگا. دروازہ کھولا تو اس کے قدم وہیں رک گئے. سحر زمین پر پڑی تھی اور اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے. سانس ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی تھی. سحر! شارق گھٹنوں کے بل اس کے پاس گرا اور فوراً سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا. آنکھیں کھولو. اس کی آواز کانپ رہی تھی. سحر میری طرف دیکھو. اس کی آواز میں نمی بھر گئی. سحر نے بمشکل آنکھیں کھولی. اس کی سانس اکھڑ رہی تھی. شارق کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو نکلے تھے. کچھ نہیں ہوگا، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں. ہے کوئی؟ وہ بری طاقت سے چیخا مگر سحر نے لرزتے ہاتھوں سے اس کی کلائی پکڑی. مجھے معاف کر دینا. شارق رو پڑا. تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم میری بیوی ہو، میرا بچہ. سحر کے لب کانپے. اسے کھچکی اور خون کی الٹی اور اگلے لمحے اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا. اس کی سانس ہمیشہ کے لیے رک چکی تھی. سحر! شارق کی آواز ٹوٹ گئی. سحر اٹھو. وہ چلا ہے مگر وہ مر چکی تھی. سحر پوری حویلی شارق کی دل دہلا دینے والی چیخوں سے گونج اٹھی. سحر کی تدفین سے فارغ ہو کر چوتھے دن شارق سیدھا اس کے کمرے میں گیا جہاں زرش کو قید رکھا گیا تھا. دروازہ کھلتے ہی زرش دوڑ کر اس کے سامنے آ گئی. آنکھیں مسلسل رونے سے سجی ہوئی تھی. وہ ہچکیوں پہ اسے یقین دلاتی رہی کہ وہ بے گناہ ہے. اس نے زہر کو مارنے کی نیت سے کچھ نہیں کیا تھا. آنیا نے اسے صرف بے ہوشی کی دوا دینے کو کہا تھا کہ نکاح رک جائے. اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ دوائی زہر بن جائے گی. مگر شارق کی آنکھوں میں نفرت پتھر بن چکی تھی. اسے زرش کی ایک نہ سنی اور اسے بازو سے پکڑ کر نیچے ہال میں لے آیا جہاں پورا خاندان موجود تھا. فریدہ بیگم سحر کی موت کے غم میں اپنے سر میں خاک ڈالے بیٹھی تھی. زرش کو دیکھتے ہی ان کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ چیخ چیخ کر اسے اپنی بیٹی کا قاتل کہنے لگی. زرش روتی صفائیاں دیتی مگر کسی نے اس کی بات پر یقین نہ کیا. تب شارق نے سر لہجے میں اعلان کیا کہ زرش کی سزا یہی ہوگی کہ وہ زندگی بھر اس نفرت کے ساتھ زندہ رہے. اسی لمحے مولوی صاحب کو بلایا گیا اور زرش کی منتوں، آنسو اور نکاح کے انکار کے باوجود شارق نے اس سے نکاح کر لیا تاکہ وہ ہر لمحوں سے اس جرم کی سزا دے سکے. یوں ماتم، نفرت اور الزاموں کے بیچ زرش نہ چاہتے ہوئے بھی شارق کے نکاح میں آ گئی. کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا اور زرش خوفزدہ سے پیچھے ہٹی مگر اگلے لمحے شارق نے اس کا بازو پکڑ کر اسے بے رحمی سے بیڈ پر دھکا دے دیا. وہ لڑکھڑا کر گری اور سہم کر اسے دیکھنے لگی. شارق کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی. اسی ایسی وحشت جو زرش کے دل میں خوف اتار رہی تھی. وہ خاموشی سے الماری کی طرف بڑھا. کچھ لمحے بعد اس نے الماری کھولی اور اندر سے سرخ عروسی جوڑا نکالا. وہی جوڑا جو سحر کا تھا. زرش کا سانس وہی اٹک گیا. شارق نے جوڑا اس کی طرف پھینکا. پہنو اسے، اس نے حکم دیا. زرش کی آنکھوں میں خوف سے پھیل گئی تھی. یہ کیسے؟ نہیں پلیز. وہ پیچھے ہٹی. میں نے کہا پہنو. اس کی دہاڑ سے پورا کمرہ لرز اٹھا. زرش کے ہاتھ کانپنے لگے. خدا کے لیے ایسا مت کرے. وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی. شارق ایک دم اس کے قریب آئے. کیوں؟ اس کی آواز ذہن میں بجھی ہوئی تھی. یہی جوڑا پہنے ہوئے تھے نا میری بیوی. زرش کے آنسو بہہ نکلے. میں نے انہیں نہیں مارا ہے. چپ. شارق چلایا. تمہاری وجہ سے مری ہے وہ. شارق نے اس کے ہاتھ میں زبردستی جوڑا دیا. تیار ہو جاؤ. شارق کی ذہنی حالت ابتر تھی. زرش مسلسل روتی رہی مگر اس کی آنکھوں میں ایسی سختی تھی کہ وہ انکار نہ کر سکی. کچھ دیر بعد واش روم کا دروازہ آہستہ سے کھلا. زرش باہر آئی. شارق چند میں سے خاموشی سے دیکھتا رہا. اس کی آنکھوں میں درد ابھرا. درد اتنا شدید تھا کہ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ لی. کیوں ہوا یہ سب؟ اس کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی اور اگلے لمحے شارق اس کی طرف بڑھا. اس کے کندھوں کو زور سے پکڑ کر جھنجھوڑا. تم اس جیسی نہیں بن سکتی. تم اس کی جگہ کبھی نہیں رہ سکتی. زرش خوف سے سہم گئی. شارق پلیز، یہ رنگ، یہ جوڑا، یہ سب سحر کا تھا. اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی. شارق کی نظریں اس کے ہونٹوں پر رکی. اسے بے رحمی سے زرش کا چہرہ پکڑا اور ہاتھ سے اس کی لپسٹک مٹا دی. زرش سہم کر پیچھے ہٹی. مت لگاؤ یہ رنگ. وہ غرایا. یہ صرف سحر پر اچھا لگتا تھا. زرش کی ہچکیاں بلند ہو گئی.
शारिक ने उसे घसीटा और आईने के सामने खड़ा किया। खुद को देखो। जरिश ने कांपते हुए आईने में देखा। बिखरा मेकअप, फैली लिपस्टिक, आंखों से आंसू। फर्क नजर आ रहा है क्या? जरिश की आंखों से आंसू मुसलसल बहते रहे। वो जन्नत लगती थी। उसकी आवाज आहिस्ता मगर जानलेवा थी। और तुम? जरिश ने आंखें बंद कर ली। तुम मुझे एक बार उसकी मौत याद दिलाती हो। ये कहकर शारिक ने सहर का दुपट्टा जरिश के कदमों में फेंका और खुद कमरे से निकल गया, जबकि जरिश वहीं आईने के सामने बैठती चली गई। नाश्ते की मेज पर गैर मामूली खामोशी थी। सब लोग बहुत खामोश बैठे थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जरिश का पूछ सके। वो शारिक के हुक्म पर मुलाजमा के कहने के बाद नीचे आई। चेहरा जर्द था, आंखें सूजी हुई थी और कदम लर्ज रहे थे। मुलाजमा ने खामोशी से उसके सामने प्लेट रखी। जरिश ने बमुश्किल नवाला तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया था कि अचानक शारिक ने उसकी प्लेट उठाई। पूरा हॉल खामोश हो गया। शारिक के चेहरे पर अजीब सी सर्द महरी थी। वो प्लेट उठाए सीधा लॉन की तरफ बढ़ा। सब एकतार उसके पीछे चल पड़े। लॉन के कोने में बड़ा शिकारी कुत्ता जंजीर से बंधा था। शारिक ने जरिश की प्लेट उसके सामने रख दी। कुत्ते ने फौरन खाने पर झपटना शुरू कर दिया। जरिश के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों में बेयकीनी तैरने लगी। ये सब क्या है? शारिक आहिस्ता से उसकी तरफ मुड़ा। खाओ। जरिश के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सजा तुम्हारे लिए मुनासिब है। जरिश की आंखों से आंसू बह निकले। खुदा के लिए मुझ पर यकीन करें, मैंने सहर आपी को नहीं मारा। शारिक की आंखों में दर्द चमका, मगर अगले लम्हे नफरत ने उसे दबा दिया। मेरी सहर भी यही कहती होगी ना, आखिरी सांस तक। जरिश सिसक पड़ी। मैं बेगुनाह हूं। तभी कुत्ता जोर जोर से भूंकने लगा। जरिश खौफजदा होकर पीछे हटी। उसे बचपन से कुत्तों से शदीद खौफ था। शारिक ने नौकर की तरफ देखा। जंजीर खोलो। जरिश के वजूद में जैसे बिजली दौड़ गई। नहीं शारिक, प्लीज नहीं। जरिश जंजीर खुलते ही कुत्ता तेजी से उसकी तरफ लगा। जरिश खौफ के मारे उल्टे कदमों भागी। बचाओ, खुदा के लिए बचाओ। उसकी चीख पूरे लॉन में गूंज गई। दौड़ते उसका पांव फिसला और वो घास पर गिर पड़ी। कुत्ता उसके करीब पहुंचकर जोर जोर से भौंकने लगा। जरिश ने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए और कांपती हुई सिसकियों में अपनी बेगुनाही का दर्द बरतूब महसूस करने लगी। मैंने नहीं मारा, खुदा के लिए। शारिक चंद कदम दूर खड़ा उसकी टूटी हुई आवाजें सुनता रहा, मगर उसके अंदर की आग अब भी ठंडी नहीं हुई थी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। हवेली की छत पर ठंडी हवा चल रही थी, मगर शारिक के अंदर जलती आग कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो दीवार के साथ टेक लगाए मुसलसल सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था। उसके कदमों के पास सिगरेट का अज्जला कटा टुकड़ा पड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख थी, चेहरा थका हुआ था। तभी पीछे से आहिस्ता कदमों की आवाज आई। वो आनिया थी। वो चंद लम्हे खामोशी से उसे देखती रही, फिर धीरे से उसके करीब आकर खड़ी हो गई। और कितना खुद को जलाओगी शारिक? शारिक ने कोई जवाब ना दिया। बुआ खामोशी से धुआं हवा के सुपुर्द करता रहा। जरिश को आजाद कर दो। आनिया आहिस्ता से उसके बिल्कुल पास बैठ गई। ये सुनकर शारिक की पलकें आहिस्ता से उठी। फिर जेल भेज दूं उसे? आनिया ने धीमी आवाज में मशवरा दिया। क्यों रोज रोज उसके चेहरे को अपने करीब देखकर खुद को अजियत क्यों दे रहे हो? शारिक की नजरें खला में कहीं जम गई। अजियत? वो तल्खी से हंसा। अजियत तो उस दिन शुरू हुई थी जब सहर ने मेरी बाहों में दम तोड़ा था। आनिया फौरन उसके करीब। मैं तुम्हारा हर सर समेट लूंगी शारिक, मुझे एक मौका तो दो। उसे शारिक के हाथ पर हाथ रखा। हमारी मंजिल अभी भी हमारा इंतजार कर रही है। शायद किस्मत यही चाहती है कि हम मिले। चंदमों के लिए खामोशी छा गई। शारिक ने बहुत आहिस्ता से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकाला। आनिया का चेहरा फीका पड़ा। शारिक ने पहली बार पूरी तवज्जो से उसकी तरफ देखा। वो नजरें अजीब सी थी। जानती हो आनिया? उसकी आवाज गैर मामूली तौर पर पुरसुकून थी। मैं रोज सोचता हूँ जरिश अकेले इतना बड़ा खेल खेल ही नहीं सकती। आनिया के दिल की धड़कन एक लम्हे को रुकी। मतलब? उसने अनजान बनकर सवाल किया। किसी ने उसकी मदद की थी। शारिक की आंखें उसके चेहरे पर जम गई। आनिया के हाथ ठंडे पड़ने लगे। शारिक आहिस्ता से खड़ा हुआ। सिगरेट जमीन पर फेंककर जूते से मसला और झुककर उसके करीब आया। इतना करीब कि आनिया उसकी सांसों की हदत महसूस कर सकती थी। और जिस दिन मुझे पता चल गया ना कि सहर की मौत के पीछे जरिश के अलावा कोई था, मैं उसे भी जमीन में काट दूंगा। आनिया की हलक में जैसे कांटे अटक गए। शारिक की आंखों में सफाक चमक उभरी। शारिक चंद में उसे खामोशी से देखता रहा, फिर बगैर कुछ कहे पलटा और सीढ़ियों की जाने बढ़ गया। आनिया वहीं साकित खड़ी रह गई। हवा अभी भी वैसी ही चल रही थी, मगर उसके माथे पर ठंडा पसीना आ रहा था, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ था कि शारिक सिर्फ टूटा नहीं था,
अब खतरनाक भी हो चुका था। कमरे में मध्यम रोशनी चल रही थी और शारिक अंदर आया तो उसके हाथ में एक डायरी थी। जरिश ने खौफजदा नजरों से उसे देखा, मगर वो खामोशी से उसके सामने आकर बैठ गया और इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वो डरते डरते उसके पास बैठी। शारिक ने डायरी उसकी तरफ बढ़ा दी। जरिश के हाथ कांपने लगे, क्योंकि वह सहर की डायरी थी। हर सफ़े पर शारिक का जिक्र, उसके ख्वाब और आने वाली जिंदगी की बातें लिखी थी। पढ़ो इसे, वो गंभीर आवाज में हुक्म देता उसके दिल को दहला गया। मैं ये नहीं पढ़ सकती। जरिश की आवाज टूट गई। पढ़ो, शारिक चिल्लाया तो जरिश ने लरजते हाथों से पहला सफ़ा खोला। शारिक को बारिश बहुत पसंद है। शादी के बाद पहली बारिश हम साथ देखेंगे। जरिश की आंखों से आंसू बहने लगे। शारिक खामोशी से उसे देखता रहा। फिर उसने दूसरा सफ़ा खोला। मैं चाहती हूँ हमारा बेटा बिल्कुल शारिक जैसा हो। जरिश के हाथ से डायरी छूट कर गिर गई। मैं ये नहीं कर सकती, प्लीज। जरिश सिसक उठी और डायरी बंद कर दी, मगर शारिक की आंखों में दर्द खतरनाक हद तक बढ़ चुका था। क्यों? सच पढ़कर तकलीफ हो रही है? वो तलखी से उसे देखता कराया। ये सब ख्वाब था, उसके बहुत छोटे छोटे, और तुमने सब दफन कर दिए। जरिश मुसलसल नफी में सर हिलाती रही। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया शारिक। शारिक एकदम उसके बेहद करीब आया, मगर वो तो मर गई ना। उसकी आंखों में खून उतर आया था। ये जुमला जरिश के दिल में खंजर की तरह उतरा। शारिक ने मेज से नोकीला कलम उठाकर उसके सामने फेंका। आज रात तुम शहर के हर ख्वाब के नीचे एक जुमला लिखोगी। क्या मतलब? जरिश ने नम आंखों से उसे देखा। कौन सा जुमला? जरिश के सवाल पर शारिक की आवाज बर्फ जैसे सर्द हो गई। मैं तुम्हारी कातिल हूं। जरिश जैसे अंदर से टूट गई। नहीं प्लीज। वो पूट पूट कर रो पड़ी थी। लिखो। उसके दहाड़ने पर जरिश कांप उठी। उसने लरजते हाथों से कलम उठाया और डायरी खोल ली। हर सफ़े पर शहर के ख्वाब थे। उन ख्वाबों के नीचे जरिश के आंसू से भीगे अल्फाज। मैं तुम्हारी कातिल। शारिक चंद में उसे देखता रहा, फिर खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मगर जाते उसने एक बार पलट कर देखा। जब तक मैं ना कहूं तुम्हें इसी हालत में इस तरह बैठ कर लिखना पड़ेगा। जरिश झुके सर के साथ रोते हुए लिख रही थी, जबकि उसके कांपते हाथ स्याही से भर गए थे। नोकीला कलम उसकी उंगली को जख्म कर गया था। खून कतरा कतरा बह रहा था, और शायद पहली बार शारिक को महसूस हुआ कि बाद सजाएं इंसान को जिंदा रखते हुए अंदर से खत्म कर देती है। सुबह का वक्त था। हवेली के बाहर मुलाजिम परेशानी से शारिक की गाड़ी का बोनेट खोले खड़े थे। वो कई दिनों बाद ऑफिस जाने को तैयारी में था। सर, शायद इंजन का मसला है, आज गाड़ी नहीं चल सकेगी। शारिक पहले ही कई रातों की बेख्वाबी से चिड़चिड़ा हो चुका था। उसे झिंझला कर टाई डीली की और गाड़ी को लात मारी। तभी पीछे से आनिया की आवाज आई। मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें ऑफिस, डोंट वरी। शारिक ने बेदिली से उसकी तरफ देखा। बुआ कुछ लम्हे खामोश था, फिर बगैर कुछ कहे उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आनिया के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। चंद मिनट बाद शारिक गाड़ी में बैठा, जबकि आनिया ड्राइविंग सीट पर आने से पहले उसके फोन की बेल सुनाई दी। फोन पर बात करने के लिए उसने शारिक को 5 मिनट बाद का इशारा किया और थोड़े फासले पर जाकर खड़ी। शारिक ने थके अंदाज में आंखें बंद कर ली। उसे मालूम भी ना हुआ कि आनिया का फोन गाड़ी के ब्लूटूथ से पहले ही कनेक्ट हो चुका था। अगले लम्हे गाड़ी के स्पीकर से आनिया की आवाज गूंजी। यार मेरे लिए अब हामिद ही ठीक है। शारिक की बंद आंखें खुली। उसके हाथ माथे पर बल पड़ा और शारिक, दूसरी तरफ से हल्की हंसी सुनाई थी। वो आनिया की आवाज में बेजारी थी। वो नफसियाती हो चुका है। उसके पास अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। शारिक के चेहरे पर नागवारी उभरी, मगर आनिया की अगली बात ने जैसे उसकी सांसें ही रोक दी। वैसे भी अगर उसे पता चल गया कि जरिश कसूरवार नहीं है, बल्कि असल में सारा खेल मेरा था, वो हंस पड़ी, तो वो मुझे जान से ही मार देगा। एक लम्हे को उसका पूरा वजूद जैसे सुन हो गया। शारिक की आंखों के सामने शहर का मरता हुआ चेहरा घूम गया। जरिश की चीखें, उसकी कस्में, उसके आंसू जो उसकी बेगुनाही की गवाही थे। मैं बेगुनाह। शारिक के हाथ बुरी तरह से कांपने लगे। तभी आनिया दरवाजा खोलते मुस्कुराती हुई गाड़ी में बैठी। चले? मगर अगले लम्हे उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं? अगले लम्हे शारिक का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ आनिया के मुंह पर पड़ा। वो चीख उठी। शारिक की आंखें खून उगल रही थी और जरिश बेगुनाह थी। आनिया के आंसू का चेहरे का रंग उड़ गया। मैं शारिक ने उसका बाजू झटके से पकड़ा और गाड़ी से बाहर घसीट दिया। उसकी दहाड़ पूरी हवेली में गूंज उठी। नौकर, घर वाले सब घबरा कर बाहर निकल आए। आनिया मुसलसल रो रही थी। शारिक मेरी बात तो सुनो। मगर शारिक अब काबू में नहीं आ रहा था। उसने एक और थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। मेरी सहर मेरी बाहों में मर गई और सजा
सरिश पुकत रही थी, इसलिए कि तुम वो शातिर हो। फरीदा बेगम लड़खड़ाते हुए बाहर आई। क्या हुआ शारिक? शारिक ने खूनखार निगाहों से आनिया की तरफ इशारा किया। पूछे इससे। आनिया बुरी तरह से कांप रही थी। मैं निकाह रुकवाना चाहती थी। पूरा सहन साकित हो गया। शारिक की आवाज टूटने लगी। सहर, तुमने दबाव में मेरा था? आनिया रोने लगी। मैं नहीं चाहती थी वो मरे। शारिक ने गुस्से से उसका गला पकड़ लिया। मगर मर गई वो। तुमने मेरे साथ कौन सा खेल खेला? हाँ? शारिक की आंखों से आंसू की बजाय गोया खून बह रहा था। पूरी हवेली उसकी चीख से लड़ उठी। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, जेल में सड़ोगी अभी इसी वक्त। शारिक ने पुलिस बुलवाई और आनिया को जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया। सच सामने आ गया था और फिर असल मुजरिम बेनकाब हो गया। शारिक लड़खड़ाते कदमों के साथ वापस कमरे की तरफ पड़ा। उसके कानों में अभी भी आनिया के अल्फाज गूंज रहे थे। सरिश कसूरवार नहीं थी। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके वजूद से जान खींच ली हो। उसने लड़ते हाथों से दरवाजा खोला। कमरा खाली था। शारिक की सांस रुक गई। सरिश? जवाब में खामोशी उसकी मुंतजर थी। वो तेजी से अंदर आया। बेड खाली था। वॉशरूम की तरफ पड़ा। सरिश? उसे बेख्तियार पुकारा। दिल बेख्तियार बारी हो रहा था। उसे सरिश की बात न सुनकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। वो बेगुनाह साबित हुई थी। इतने जुल्म सहे थे। शारिक का दिल फटने के करीब था। अब तो बालकनी तक खाली हो चुकी थी। उसके हाथ कांपने लगे। सरिश? पहली बार उसकी आवाज में खौफ था। वो पागलों की तरह पूरी हवेली में से ढूंढने लगा। सरिश कहाँ है? वो नौकरों के सामने चिल्लाया। नौकर सहम गए। सर, हमें नहीं मालूम। शारिक के माथे पर पसीना उभरा है। उसे अचानक सरिश की वो टूटी हुई आवाज याद आई। मैं पागल हो जाऊंगी। अगले लम्हे वो हवेली से बाहर भागा। बारिश शुरू हो चुकी थी। शारिक सड़कों पर, खेतों के रास्ते पर और वीरान जगहों पर उसे ढूंढता फिर रहा था। यहाँ तक कि शाम हो गई और वो उम्मीद हार बैठा। और वो वहीं सड़क पर बैठकर उसे पुकारने लगा। सरिश लौटा, खुदा के वास्ते है। तभी उसे एक निस्वानी आवाज करीब से सुनाई दी। उसके कदम अचानक रुक गए। दूर एक पुराने दरख्त के नीचे कोई दुशीसा बैठी थी। वो दीवाना वार भाग कर आया। वो कोई और नहीं बल्कि सरिश थी, जो खुद से बातें कर रही थी। सरिश? वो दरख्त के साथ टेक लगाए जमीन पर बैठी थी। बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे और लब मुसलसल हिल रहे थे। शारिक आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। सरिश? उससे दर्द भरे अंदाज में पुकारा, मगर सरिश अपने हवासों में नहीं थी। वो बस मुसलसल एक ही बात कहे जा रही थी। मैंने नहीं मारा, मुझे सजा मत देना। सरिश हल्की हल्की आवाज में हंस रही थी। आप भी नाराज है मुझसे? उसे जोरदार आवाज में ताली बजाकर अपने बाल नोच लिए। शारिक की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सिर्फ दवा दी थी। वो और भी बहुत कुछ कह रही थी। शारिक की रही सही हिम्मत जैसे खत्म हो गई थी। शारिक के कदम जैसे जमीन में धंस गए। वो हार गया था। एक बार फिर टूट कर बिखर गया था। उसकी आंखों से पहली बार बेख्तियार आंसू निकल पड़े। सरिश? सरिश ने चौंक कर उसे देखा, मगर पहचान न सकी। वो डरते डरते पीछे हटी। नहीं, मुझे सजा मत दो। ये जुमला शारिक के सीने में खंजर बनकर उतरा। वो फौरन उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। नहीं नहीं सरिश। उसकी आवाज बुरी तरह से कांप रही थी। मैं गलत था, खुदा की कसम में गलत था। सरिश खाली नजरों से उसे देखती रही। शारिक ने लड़ते हाथों से उसका चेहरा थामा। मुझे माफ कर दो। अगले पल उसे बाहों में समेटकर फूट फूट कर रोने लगा। बारिश मुसलसल बह रही थी, मगर शायद पहली बार उसके अंदर जलती आग बुझने लगी थी। इंतकाम मुकम्मल हुआ था। कसूरवार को सजा हुई थी। बेकसूर रुल गए थे। चंद दिन बाद शारिक सरिश को शहर के बेहतरीन अस्पताल ले गया। वो महीनों उसके साथ रहा। उसकी दवाएं, इलाज, चीखें, खामोशियां, वो चुपचाप ये सब बर्दाश्त करता रहा। वो हर रोज उसे यकीन दिलाता रहा कि वो कातिल नहीं है। तुम कातिल नहीं हो सरिश। आहिस्ता आहिस्ता सरिश की हालत बेहतर होने लगी। वो फिर से मुस्कुराना सीखने लगी। और एक दिन उसने पहली बार शारिक को पहचान कर पुकारा। उस दिन शारिक खामोशी से रोता रहा और सजदे में गिर गया। उससे एक गलती हुई थी। उससे सालों खमियाजा भुगता था। 3 साल बाद सुबह की नरम धूप सहन में फैली हुई थी। हवा में गीली मिट्टी और चंबेली की खुशबू बिखरी हुई थी। हवेली अब पहले जैसी नहीं रही थी। वही दीवारें, वही दरवाजे, वही सब कुछ था, मगर अब उनमें मातम नहीं बल्कि सुकून की छाप थी। सरिश बरामदे में बैठी चाय बना रही थी, जबकि सामने लॉन में 2 साला यमान अपनी छोटी सी गेंद के पीछे भाग रहा था। माया, पापा पकड़े ना। उसकी नन्ही आवाज पूरे सहन में गूंजी। शारिक हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके पीछे भागा और अगले लम्हे उसे उठाकर अपनी बाहों में भर लिया।
यमान खिलखिलाकर हंसने लगा। जरीश खामोशी से दोनों को देखती रही। कभी कभी उसे यकीन ही नहीं आता था कि वो जिंदगी वाकई दोबारा खूबसूरत हो सकती है। वही शारिक जिसकी आंखों में कभी सिर्फ नफरत हुआ करती थी, आज अपने बेटे के साथ बच्चों की तरह हंस रहा था। कभी मुलाजिम ने तभी आकर अखबार में इस पर रखा। जरीश ने बेध्यानी से अखबार उठाया, मगर अगले लम्हे उसकी नजरें एक खबर पर जम गई। उसके चेहरे की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगी। शारिक ने उसे चुप देखा तो फौरन महसूस किया, क्या हुआ है? जरीश चंद में खामोश रही। आनिया को जरीश की नजरें उस पर जम गई। उसे एक बार फिर गहरी सांस भरी और अखबार एक तरफ रखा। आज आनिया को फांसी दे दी गई। एक लम्हे को हवा जैसे थम गई। सहन में खेलते यमान की हंसी अब भी गूंज रही थी, मगर शारिक के अंदर की ही पुरानी याद दोबारा खुल गई थी। वो खामोश हो गया, इतना खामोश कि जरीश को उसकी सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। काफी देर बाद उसने आहिस्ता से यमान को जमीन पर उतारा। बच्चा दोबारा गेंद के पीछे भागने लगा। यमान की नजरें खला में जम गई। उसे शहर याद आ गई, उसकी हंसी जो दिल छू लेती थी। उसके ख्वाब अधूरे रह गए और वो आखिरी सांस जो उसकी बाहों में टूट गई थी। फिर उसे जरीश याद आई, वही जरीश जो बार बार कहती रही कि मैं बेगुनाह हूं, और वो खुद उस औरत को सजा देता रहा जो असल में खुद भी एक धोखे का शिकार थी। जरीश आहिस्ता से उसके करीब आया और उसका हाथ थमा। आप ठीक है? शारिक ने चंद में उसे देखा, फिर धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर उस दिन मैं तुम्हारी बात सुन लेता तो। जरीश की आंखों में नमी तैर गई। सब किस्मत का लिखा था। शारिक तलखी से मुस्कुराया, नहीं, कुछ मेरी नफरत भी थी। जरीश ने फौरन से उसके लबों पर उंगली रख दी। वो सब वक्त गुजर चुका है। चंदमा की खामोशी के बाद उसने आहिस्ता से उसके कंधे पर सर रख दिया। हम दोनों बहुत कुछ हार चुके हैं, अब बाकी जिंदगी की सजा मत दें। शारिक की नजरें उसके चेहरे पर ठहर गई। वही चेहरा जो कभी खौफ से कांपता था, आज उसके सुकून की वजह बन चुका था। तभी यमान भागता हुआ आया और शारिक की टांग से लिपट गया। पापा, खेली ना। शारिक के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने जरीश का चेहरा थपथपाया और झुककर यमान की गोद में उसको उठा लिया। चलो भाई, आज तो बाबा जीतेगा। यमान जोर से हंसने लगा, जबकि जरीश उन दोनों को देखकर मुस्कुराई। सूरज की रोशनी सेन में फैलती चली गई। कुछ जख्म शायद कभी मुकम्मल नहीं बढ़ते, मगर मोहब्बत इंसान को जख्मों के साथ जीना सिखा देती है। और शायद यही कहानी का असल इख्तिताम था। दर्द से गुजरकर सुकून हासिल करने का जो दायमी था, एक खाक हुई, दूसरी खाक होते हुए अमर हो गई थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मोहब्बत और दुखों से भरी कहानी पसंद आई होगी। आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा दुखी और कौन सा सबसे ज़्यादा प्यारा लगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और ऐसी ही मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली कहानी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।